So we were solving equations using power series, and we have seen in examples that this approach works. But now I'm taking one or two example in which this approach is not working, and then we will find its resolution, that why it is not working and what modification you can do. So that elementary approach won't work in all cases. For example, you want to solve this equation using power series method. So what we write, you assume solution in powers of x. Okay, so substitute in given equation. So therefore, substitute second derivative, then first derivative, and y. So this will give you second derivative n minus 1, x power n minus 2 है, x square already है, so you got x power n, then 3y dash, 3 is constant, so n equal to 1 to infinity, n a n x power n minus 1 and minus xy summation n equal to 0 to infinity a n x power n plus 1. So change the equation. So you have n equal to 2 to infinity a n n n minus 1 x power n है, it's okay. सेकंड के अंदर भी x पावर n बना लेते हैं. सो ये कम हो जाएगा एक सम, तो यहाँ पे एक n बढ़ जाएगा. ठीक है, 3 को भी चाहे अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, 3n प्लस 1 ए एन प्लस 1 एक्स पावर n, और यहाँ पे n प्लस 1 है, तो इसको एक डाउन करना पड़ेगा इसको. ठीक है, सो इसमें कम करोगे तो इसमें एक बढ़ जाएगा. ठीक है, ए एन माइनस 1 एक्स पावर n. So now you have x power n in all terms, but first sum starts from 2, second from 0, and third from 1. So 2 is common, so you can start all sums from 2. So just write 2 terms from second and 1 term for third term. So after that 3a1 second वाला देगा, और फिर लास्ट आप देख लेना x के साथ जो आएगा ये आएगा, एक यहाँ से सेकंड से आएगा और एक थर्ड से आएगा. Then all sums will start from 2, so you can combine all sums. First one is an n n minus 1, second 3n plus 1 an plus 1 minus an minus 1 x power n. So this leads to, so equate coefficients. So first 3a1 equal to 0, this will give you a1 equal to 0. Second 6a2 minus a0 0, second से 6a2 minus, तो यहाँ से a2 आ जाएगा a0 by 3. ठीक है, बाकी आपके पास रिलेशन बनेगा, रिकरेंस रिलेशन. सो यू हैव an plus 1 हाईएस्ट है, सो सॉल्व फॉर an plus 1. सो मिडिल वाली टर्म है 3n plus 1 an plus 1 plus n an minus 1 minus an minus 1 equal to 0, n greater than or equal to
2. So what we have, we got a1 0, a2, a0 by ये 6 आएगा ना, a0 by 6, and other terms an plus 1 equal to, इधर ले जाओ राइट में, an minus 1 and n minus 1 an divided by 3n plus 1. तो क्या सिचुएशन बनी आपके पास? कुछ कंट्रोवर्सी है इसमें कुछ? n इक्वल टू 2, तो पहला कोफिशिएंट क्या होगा? A3 हैं? A3 n equals to 2 पे A3 निकालेंगे ना सर। हाँ जी, सर A1 0 कैसे आया? ये था ना 3a1, कांस्टेंट टर्म जो थी। ओके ओके ठीक है। So you can find all coefficients provided a naught is given. All coefficients can be determined once a0 is given. तो सारे टर्म क्या होंगी? a0 का मल्टीपल होगा, नहीं? a3 के अंदर भी a0 आएगा, a2 के अंदर भी a0 है, इसमें वो इवन वर्ड वाला नहीं बन रहा है इसमें। और an प्लस 1 में दो पिछले यूज हो रहे हैं, यही रिलेशन है ना, an माइनस 1 और an. So you got a solution which will be something like that, but you have second order equation, so we expect that you got something like this. कहने का मीनिंग है, इससे एक सोल्यूशन ही मिलेगा आपको पावर सीरीज से, दूसरा नहीं मिलेगा. You won't be able to get y2. So power series only give one solution. So power series provide only one solution. And equation is of second order. So we cannot obtain all solutions through power series. ठीक है, सोल्यूशन का मीनिंग तो दो मिलने चाहिए ना आपको, दो फंडामेंटल सोल्यूशन मिलने चाहिए y1 y2, बट हियर एवरीथिंग विल बी, जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया था आपको, लास्ट में मिला था ना, ये यू गॉट समथिंग, ये मिला था दो सोल्यूशन, तो दो कांस्टेंट रहेंगे ऑटोमेटिकली वहां पे a0 और a1, बट हियर यू गॉट एवरीथिंग विद मल्टीपल ऑफ a नॉट ओनली. तो एक एग्जांपल तो ये है, दूसरा क्विकली आप करो, उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं. बताना क्या आएगा इसका पावर सीरीज? क्या कंट्रोवर्सी आएगी इसमें? So you write this one, so substitute it in equation, so x square y double prime and 2 to infinity n minus 1 an, ये आएगा यहाँ से x पावर n ही बन जाएगा, ये दो कम करेगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस y
दोनों को क्लब कर दो, both have x power n, so no need to do anything, just start sum from common index 2. तो सेकंड से दो टर्म सेपरेट लिख लो, for n equal to 0 and n equal to 1, write two terms separate, that will be a0 plus a1x, and the rest of the terms are n2 to infinity, n minus 1, और a n भी कॉमन n में, so this is equal to 0, so therefore a0 0, a1 0, n minus 1 plus 1 an, this is equal to 0, so all an are 0 for n 2 onwards. So clearly every an is 0 for all n. So power series gives only trivial solution, which is 0. So power series provide only trivial solution, which is y equal to 0. That we know by homogeneous y equal to 0 is always a solution. So if you apply power series, that is just wastage of time. So we are not getting anything. So checking the difference between previous examples that we studied yesterday and these examples. So firstly, we define the terms that is known as ordinary and singular point. तो जो हमने पहले सॉल्यूशन लिखे थे वो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट था, ऑर्डिनरी दैट आई एम गोइंग टू डिफाइन। और इस इन प्रॉब्लम्स में जो पॉइंट्स हैं, सॉल्यूशन आपने किसके अबाउट लिखा है? जीरो के अबाउट लिखा है। x माइनस एक्स नॉट लिखते थे ना, x माइनस एक्स नॉट पावर n, सो यू टुक x नॉट इक्वल टू 0। तो इन प्रॉब्लम में जो x0 इक्वल टू 0 है, दैट इज नॉट ए सिंपल पॉइंट, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू get all solutions. So I am going to provide a definition that is ordinary and singular points. तो ordinary का हमने लिख लिया, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। singular है तो you need to modify the power series method. So we consider the following second order equation in this form. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो दूसरे वाला जनरल फॉर्म P, ठीक है, यहाँ पे कुछ Q ले लो, यहाँ पे कुछ R ले लो, और P से डिवाइड करके ये फॉर्म बन जाएगा कैपिटल P से। एंड कैपिटल P नॉन जीरो होगा ही होगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। अगर कैपिटल P जीरो है तो आपके पास सेकंड ऑर्डर है ही नहीं। सो यू कैन ऑलवेज राइट सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इन दिस फॉर्म। ठीक है, तीन कोएफिशिएंट की बजाय दो लिख दो, P और Q। सो ए पॉइंट x0 is called an ordinary point if both P and Q are analytic at x0। यानी कहने का मीनिंग है P और Q well defined है, they are differentiable everywhere, and so that you can write their Taylor series expansion। यानी कि वो x0 के आसपास में, x0 के लेफ्ट राइट में वो डिफरेंशिएबल हैं P और Q। तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर।
if x0 is not an ordinary point, then it is called singular point. Then it is called singular point. ठीक है जी, अभी एग्जांपल लूंगा मैं, अभी डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और सिंगुलर भी आगे दो टाइप के हैं, एक थोड़े अच्छे वाले हैं जिनमें हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, और एक बिल्कुल खराब है, then you cannot do anything. So there are two types of singular points. So that is second definition. When x0 is singular, then uh, there are still two cases. First case is if px x minus x naught and qx x minus x naught scale are analytic. ठीक है, अगर P और Q एनालिटिक हैं, अच्छी बात है, तो ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं है तो px को x माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करो, qx को स्केयर से। अगर ये एनालिटिक हैं, then the solution, then power series solution can be obtained by a generalized version of power series such x0 is known as regular singular point. Regular if p and p times x minus x naught and q times x minus x naught square, these are analytic, then you can obtain the power series solution by modifying something. कैसे करना है हम आगे पढ़ेंगे। और अगर ये भी ना हो, ठीक है, ये भी एनालिटिक ना हो, then you cannot do anything. So in all other cases, the point x0 is called irregular singular point, and there is no universal way to find power series solution. तो अगर P और Q एनालिटिक हैं तो ऑर्डिनरी पॉइंट है, अगर ऑर्डिनरी नहीं है तो फिर आपने फर्दर चेक करना है P टाइम्स x माइनस एक्स नॉट एंड Q टाइम्स x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, these are analytic, this one. So then still you can find the solution, and this point x0 is known as regular singular point. And if you cannot do anything like this, so then x0 is called irregular singular point.
तो अब आपका एम क्या है, इनको चेक करना एनालिटिसिटी कि एनालिटिक है कि नहीं है। तो कई इक्वेशंस में हमारे कोफिशिएंट होंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। सो इन द केस ऑफ polynomial coefficients, polynomial coefficients, अब पॉलिनोमियल मान लो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास ये थी एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस समथिंग एक्स माइनस वन वाई इक्वल टू समथिंग। तो आपको पता है कोफिशिएंट पॉलिनोमियल तो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। एक्स के से डिवाइड करोगे तो ये आपका बन जाएगा रैशनल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इनमें सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि अब जिस फैक्टर से आप डिवाइड कर रहे हो तो वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, कहीं जीरो तो नहीं आ रहा 1/0, फिर तो वो डिफाइन ही नहीं होगा ना। अगर डिफाइन नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी तो बाद की बात है, पहले तो आप चेक करोगे कि वो डिफाइन है कि नहीं है। सो इन इफ यू हैव पॉलिनोमियल कोफिशिएंट एंड इफ द लिमिट्स, उनमें सिर्फ लिमिट से काम चल जाएगा। इफ द लिमिट्स, लिमिट्स मतलब कौन सी लिमिट, x गोज टू x नॉट, अब ये चेक कर लो x माइनस एक्स नॉट पी एक्स जो ऊपर लिखा था मैंने, और लिमिट ये चेक कर लो, या आप एनालिटिक चेक कर लो, एक ही बात है। सो इफ यू चेक लिमिट्स, इफ द लिमिट्स आर फाइनाइट then such point is regular, then such point x0 is regular। और बाकी केसेस में अगर ऐसा नहीं हो तो फिर आपने सीरीज लिखना है उनका। फॉर इक्वेशंस विद अदर जनरल कोफिशिएंट, फॉर इक्वेशंस विद more general coefficients other than polynomial, more general coefficients than polynomial, कुछ भी हो सकता है ना, e पावर x हो, साइन हो, cos हो, log हो। so x0 is called regular singular point, regular singular point। पहली बात तो if it is singular, and if both x minus x naught px and x minus x naught square qx have convergent Taylor series about x0। यानी कि अगर आपके चेक तो हमने यही करना है कि x माइनस एक्स नॉट पी एक्स और x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर क्यू एक्स एनालिटिक हो। तो एनालिटिक कब होगा, जब इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप लिख सकते हो तो फंक्शन आपका एनालिटिक है। बट अगर आपके कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल है तो सिर्फ इससे ही काम चला जाएगा, जस्ट फाइंड द लिमिट x गोज टू x0। यहाँ आप लिमिट हटाओगे तो आप क्या कहोगे, x माइनस एक्स नॉट पी एक्स and x minus x naught square qx, these are analytic। तो आपका पॉइंट क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो अगर आपके पास x0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट पावर सीरीज सॉल्यूशन। जो हमने चैप्टर बिगिन किया था हमारा पॉइंट ऑर्डिनरी था, और अब जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे उनमें पॉइंट आपका सिंगुलर था। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने किया था इक्वेशन, इसी टाइप की प्रॉब्लम थी वो, चलो और ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ऑल सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर
points of the equation. ये इक्वेशन है x minus 2x y double prime x minus 2 square. उसमें चेक करो कि आपके पॉइंट कैसे हैं. सो सॉरी, फाइंड ऑल द सिंगुलर पॉइंट्स. तो पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सेकंड डेरिवेटिव विद कोफिशिएंट 1, तो उसे डिवाइड कर दो. 3 डिवाइड बाई 2, x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस x माइनस 2, सो 1 बाई 2x x minus 2. So in our notation, px is coefficient of y dash. ठीक है, और qx क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y. और इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या थे? पॉलिनोमियल थे. y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या है? पॉलिनोमियल. 3x polynomial, x minus 2 polynomial. So we have equation with polynomial coefficients. तो हमने चेक करना है कि अब ये एनालिटिक है कि नहीं है ना. तो क्या प्रॉब्लम, कौन से पॉइंट प्रॉब्लम करेंगे जिसमें एनालिटिक नहीं होगा? 2 और 0. हाँ, 2 तो उसमें डिफाइन ही नहीं है ना. ठीक है, सो तो पहले आपने लिखने हैं सिंगुलर पॉइंट्स, फिर हम चेक कर देंगे कि ये कौन से हैं, रेगुलर हैं या इररेगुलर हैं. द सिंगुलर पॉइंट्स आर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2. और ऑर्डिनरी कौन से हैं? 0 2 छोड़ के बाकी सारे. हाँ, इनको छोड़ के बाकी सारे. सो r माइनस 0 एंड 2. एक बार क्विज में ये पूछा था मैंने, है ना, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. सो इनको छोड़ के बाकी सारे. सो फॉर x इक्वल टू, दोनों को चेक कर लेते हैं बारी बारी से कि x इक्वल टू 0 कौन सा है. तो लिमिट चेक कर लो. लिमिट x गोज टू 0 x px चेक करो कितनी आएगी लिमिट. ऊपर 0 आ जाएगा x px, तो ये 3x आ जाएगा. जब x 0 है तो 0 बन जाएगा नहीं. लिमिट x गोज टू x0 लिखते हो तो x0 0 है जिसको चेक कर रहे हो आप पॉइंट. सेकंड लिमिट आपने चेक करनी है x स्क्वायर qx को. इसको लिख देता हूँ, चलो कितना था ये. लिमिट x गोज टू 0, 3x divided by 2x minus 2 square. So this limit is 0. Second, x goes to 0, x square qx. X square qx is 1 by 2x x minus 2. तो ये भी 0 आ जाएगा. So both limits are finite. So both limits are finite. तो पॉइंट क्या होगा? Regular. Limits are finite. So x equal to 0 is a regular singular point. Second, for x equal to 2, अब कौन सी लिमिट निकालोगे? X approaches to 2. X approaches to 2. Find x px. This is 0 again. सॉरी, यहाँ भी गलत लिख दिया मैंने. यहाँ भी x माइनस एक्स नॉट था ना, यहाँ भी तो x माइनस 2 आएगा ना. सेकंड, लिमिट x गोज टू 2, x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर qx. ये कितना आएगा? लिमिट x गोज टू 2, 3 डिवाइड बाई 2. px वाला तो इन्फिनिटी आ रहा है.
ये 120 आ रहा है। तो इंफिनिटी Yes, आएगा। sir. हाँ ठीक है। लिमिट x गोज टू 2, क्या आएगा 3/2 x - 2 आ जाएगा ना। Yes. सो डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरे में 0। मल्टीप्लाई भी तो होगा है। सर, साथ में सर x माइनस 2/2 आ जाएगा। हाँ तो 3x/2 आ जाएगा 0 ये। आ जाएगा. तो है सर x माइनस 2/2x। -2/2 है। Sir 3 नहीं ना है. X minus 2 upon 2x आएगा. अच्छा दूसरे वाले सर qx ले रहे हैं। ओके ओके। अब क्या आएगा एक्सप्रेशन, बोलो एक्सप्रेशन। 3 x² QX। x माइनस 2/2x। सर x माइनस 2/2x 0 आ जाएगी लिमिट। So this is 0. So one limit does not exist. दोनों होना चाहिए ना। So hence x equal to 2 is a irregular सर point. सर ऊपर वाले में x माइनस 2 px से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो कट नहीं जाएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा सीधे ही। नीचे स्क्वायर है. नीचे X x माइनस 2 2 का का स्क्वायर स्क्वायर. था। p a p एक p देख लो, ये p बड़ा 3/2 x - 2 स्क्वायर है ना, उसमें एक बचेगा। चलो एक आप लोग करो। डिटरमाइन ऑल सिंगुलर पॉइंट पॉइंट्स ऑफ अब आपके पास कोएफिशिएंट सारे पॉलिनोमियल नहीं है। सो यू हैव cos x y डैश प्लस sin x। Determine all single points and classify them regular or irregular. Give a try. Now you need to go with basic definition. एनालिटिक हैं, टेलर से लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। Firstly, write standard form if you want. सर x इक्वल टू π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। Cos x by x minus π/2 square y prime plus sin x and answer is x equal to π/2 is in fact regular singular point. So only singular point is π/2. Singular point is π/2 x equal to, and here you have px which is cos x by x minus π/2 square, and qx is sin x upon x minus π/2 square. So consider किनको शो करना एनालिटिक, x minus π/2
पी एक्स कितना आएगा ये cos x एक कैंसिल हो जाएगा x माइनस पाई बाई टू एंड सेकेंड x माइनस पाई बाई टू स्क्वेयर क्यू एक्स विच इज साइन एक्स. कुछ हो सकता है सॉर्ट आउट. यस सर, जो फर्स्ट वाली है जिसके साथ px में मल्टीप्लाई है, दोनों 0/0 फॉर्म बन रही है, तो एल हॉस्पिटल रूल से इसकी लिमिट -1 आ जाएगी. तो मतलब ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, ऐसी बात नहीं है. यस सर, कर रहे हैं. तो आप क्या करो, cos x की टेलर सीरीज लिख दो पाई बाई टू के अबाउट, नीचे वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा ये. दूसरे में तो साइन एक्स है, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज एनालिटिक एवरीवे. फर्स्ट वन इज आल्सो राइट द टेलर सीरीज फॉर cos x अबाउट x इक्वल टू पाई बाई टू. क्या आएगी सीरीज? सर 1 minus x minus pi by 2 square by 2 factorial plus x minus pi by 2 का पावर 4 by 4 factorial. हाँ, तो नीचे वाला फैक्टर से कैंसिल करोगे तब क्या बचेगा उसके बाद? सर 1 में तो नीचे रह जाएगा ना x minus pi by 2. हाँ, पाई बाई टू के अबाउट क्या है? सर 1 plus x square by 2 factorial होती है ना, तो 1 का टर्म तो रहेगा. हाँ, वन कब आता है? जब जीरो के अबाउट लिखते हो. मैं पाई बाई टू के अबाउट लिख रहा हूँ. सर pi by 2 plus x minus pi by 2 square by 2 factorial होगा. लिख के बताओ, कॉपी में लिखो. एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए. एफ ए क्या आएगा? पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू 0 हो जाएगा. जीरो आएगा ना, तो टर्म हट जाएगी ना. यस, नेक्स्ट टर्म माइनस पाई बाई टू आ जाएगी. चलो, ज़्यादा टाइम नहीं है. सो राइटिंग टेलर सीरीज फॉर cos x about x equal to pi by 2. So we get cos x की सीरीज बोलो क्या आएगी पाई बाई टू के अबाउट. अभी बोल रहे थे आप लोग, क्या कैंसिल हो गया? ये बचेगा. मेरे पास अब सा आंसर है, आई एम नॉट श्योर, शायद यही होना चाहिए. एंड विच कन्वर्जेज फॉर ऑल x. टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, ऊपर x की पावर्स आ रही हैं. विच कन्वर्जेज फॉर ऑल x. Also second coefficient has sin x, also sin x is analytic at x equal to pi by 2. So therefore x equal to pi by 2 is a regular singular point. और जो हमने एग्जांपल किया था बिगिनिंग में, उसमें क्या था जिसमें हमारा वर्क नहीं कर रहा था? इस पे बताओ, इसमें क्या आएगा इन दिस एग्जांपल? व्हाट वाज x इक्वल टू 0 फॉर दिस एग्जांपल? सिंगुलर है, क्या है? भूल गए?
ट्रिवियल सॉल्यूशन था ना सर। सिंगुलर मैं है पूछ ना, रहा हूँ x इक्वल टू 0 इज सिंगुलर होगा। सिंगुलर ऑर्डिनरी पॉइंट। तो सिंगुलर होगा क्योंकि जैसे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/x² हो जाएगा, तो सिंगुलर हो जाएगा। और पिछले वाले एग्जांपल में इस एग्जांपल में क्या था, x इक्वल टू 0? जल्दी बोल दो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सेम सर, इस केस में भी फिर सिंगुलर होगा। हाँ, 3/x के लिखोगे तो 1/x, वो लिमिट लगाओगे 0 पे, एडजस्ट नहीं करेगा ना। यस। 3/x के यस x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/x बच जाएगा, यहाँ पे x px लिखोगे, सो विच इज नॉट एनालिटिक। और कल हमने जो एग्जांपल किए थे बाकी, सो हियर यहाँ तो कोएफिशिएंट 1 ही था, कोई दिक्कत नहीं है। So if you have ordinary point, you won't get any trouble writing power series solution. But if you have singular points, then you may get trouble to write power series solution. So एक एक्सरसाइज है आपके लिए, नेक्स्ट क्लास तक करके लाना, that is related to radius of convergence. Question है, what is the radius of convergence of Taylor series? Taylor series for function x square minus 2x plus 2 power minus 1 about point x equal to 0 and also about point x equal to 1. Second example है, find minimum value of radius of convergence of power series solution about x0 equal to 1 for equation x plus 1 y double prime minus 3xy prime plus 2y equal to 0. फर्स्ट में आपने निकालना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज फॉर दिस एक्सप्रेशन अबाउट x इक्वल टू 0 एंड अबाउट 1. सेकंड है व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इफ यू राइट ए पावर सीरीज अबाउट 1 फॉर द गिवन इक्वेशन. देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक सिंगुलैरिटी होगी ना, सिंगुलैरिटी क्या होगा, जिसपे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. ठीक है, तो आप फर्स्ट में क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 1/, है ये, इसके रूट निकाल लो जैसे हमने पहले किया था. अगर नीचे कोई फैक्टर है 0 बनेगा तो आप वो लिमिट एडजस्ट नहीं करेगा, तो फर्स्ट के रूट निकाल लो. आई थिंक वो रूट होंगे +1 प्लस माइनस आयोटा, तो उनका डिस्टेंस निकाल लो इससे 0 से. सेकंड में भी सेम है, सिंगुलर पॉइंट निकालो. अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या हुआ कि आप सॉल्यूशन लिख रहे हो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ पे कोई सिंगुलैरिटी है तो उनका बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं. ठीक है, एक पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है और एक पॉइंट के अबाउट आप सॉल्यूशन लिख रहे हो, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि सिंगुलैरिटी पे सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगा. करोगे ट्राई? यस सर. इनके रूट निकालने हैं, रूट निकालना और डिस्टेंस निकाल लेना. अगर रूट कॉम्प्लेक्स हो तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं,
मॉड ले लेना, अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो इसका मॉड क्या आएगा? √ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. Okay. Okay, so bye for now. Thank you, sir. Thank you, sir. Mm.